السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. السلام. کون صاحب؟ حضرت میں صدام حسین بول رہا ہوں. کہاں سے؟ میں مظفر نگر سے بول رہا ہوں حضرت. مظفر نگر؟ جی حضرت, مظفر نگر جولی. اچھا فرماؤ. ہمارا نام کیسے ملا نمبر؟ جی حضرت, آپ کی دم وائس سنتے رہتے ہیں حضرت. اچھا, جی حضرت. کچھ فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پبلک پہ؟ پبلک پہ آپ کی, ہمارے جہاں لڑکے ہیں 15-20, آپ کے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے اور آپ کی بہت دیوانے ہیں, آپ کی بات حق مانتے ہیں. حق مانتے ہیں؟ جی حضرت. ہو سکتا ہے کچھ بات میرے منہ سے ناحق بھی نکل سکتی ہے, انسان ہے. انسان ہونے کے ناطے ماننا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کبھی کوئی بات ناحق کر سکتے ہیں, لیکن حق ہی ماننا چاہیے. جو حق والی بات ہو مانو, اگر ناحق ہمارے منہ سے نکل جائے اور ثابت ہو جائے وہ قرآن حدیث سے کہ یہ ناحق ہے تو نہ مانو, ختم بات. امام اعظم نے بھی یہی کہا کہ میرا قول اگر قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو تو دیوار پہ مار دینا. جی حضرت. تو میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ جو قرآن حدیث سے ثابت ہے اور جو اولیاء اللہ نے لکھا ہے ہم وہ مانیں گے بس. حضرت ایک سوال کرتا تھا حضرت. ارشاد. حضرت یہ جو مولانا طارق مسعود ہے پاکستان کے, ہاں ہاں, ان کی کچھ لوگ یہاں سے بات بناتے ہیں کہ انہوں نے ایسے بول دیا اللہ پاک کو, اللہ کے نبی کو بنا لکھا پڑا بول دیا. اصلی میں دماغ پھر گیا تھا اس کا, چل گیا تھا. بہت خطرناک غلطی کر دی اس نے, چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے وہ. جی جی, پاگل تھا, ہو گیا تھا وہ تو, عجیب قسم کی باتیں کرنے لگا. ایسے ہی اس غلطی کو چھوٹی غلطی تھوڑی مانا جائے گا کہ چھوٹی غلطی کہہ کے چھوڑ دو کہ چھوٹی غلطی ہو گئی, زبان سے نکل گیا. باقاعدہ وہ تو پوری اچھی طرح سے جمع کے بتا رہا, جمع کے. ایسی غلطی تھوڑی ہوتی ہے, جمع کے بتایا ہوتی ہے. یہ تو بہت خطرناک. مگر حضرت مولانا طارق مسعود نے حضرت توبہ تو کی نا حضرت. توبہ تو کر لی, لیکن اچھی طرح سے توبہ جو کرنا چاہیے نا, گالوں پہ چاٹے مارنا چاہیے تھا اس کو خوب کس کس کے, اور کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک لگاتا, ایک ویڈیو بناتا, خوب اٹھک بیٹھک لگاتا, خوب گالوں پہ اپنے چاٹے مارتا, خوب توبہ کرتا, اور کلمہ بھی پڑھتا ساتھ میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف فرما, تو پھر مانی جاتی توبہ. تو حضرت میں تو کلمہ پڑھا ہے, خالی توبہ کر لی. ارے بھائی تو جس حساب سے تم نے بکا ہے اس حساب سے کلمہ پڑھنا پڑے گا نا. جی حضرت. تو میں نے حافظ علی اصغر ایک, جی حضرت, تو میں نے ان کی وائس سنی ایک, آپ کی اور حافظ علی اصغر کی ویڈیو سنتا ہوں حضرت. ہاں ہاں ہاں. تو حضرت حافظ علی اصغر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کہا, توبہ کر لی, چلو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ابھی وہ حیات ہے. اب یہ بتاؤ آپ کہ کوئی بھی کچھ بھی گستاخی کر دے پھر کہہ دے کہ ہم نے تو توبہ کر لی, یہ تو تماشا بن جائے گا نا, اسلام کا تماشا بن جائے گا. جی 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 ماشاء اللہ. تو حضرت ہم کوئی بھی کچھ بھی گستاخی کرے کہہ دے وہ توبہ کر لی. ہم آپ کی ویڈیو سن کے اور حافظ علی اصغر کی ویڈیو سن کے, یہ بتاؤ پھر تو تماشا بنے گا کہ نہیں. کوئی بھی کہہ دے گا کل کو مذاق میں ہر کچھ بک دے گا, کہہ دے گا ہم نے تو مذاق میں کہا تھا اور منہ سے نکل گیا, ایسے تو اسلام کا مذاق بن جائے گا پھر. بالکل حضرت بالکل. ارے بھائی پھر تو ان سے پوچھا جائے, پھر یا تو یہ بتاؤ جو اس کا فیور کر رہا ہے گستاخی کسے کہتے ہیں, یا تو یہ بتاؤ تم لوگ. جی حضرت. پھر یا تو یہ ثابت کرو کہ گستاخی کسے کہتے ہیں. جب تم گستاخی نہیں مان رہے تو کفر ہی نہیں مان رہے, کفر کو گستاخی تو پھر گستاخی کفر کسے کہتے ہیں. جی چلو حضرت ایک بات کہوں تمہیں. ہاں. طارق مسعود صاحب نے تو چلو توبہ کر لی, حافظ علی اصغر صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ بریلیوں کے کچھ علماء اپنے کتاب میں لکھ کے چلے گئے. ارے وہ احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا ہے, انہوں نے بیان تو نہیں کیا نا اس طرح سے تقریر کے اندر. جی کیا لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس طرح سے ہے لیکن گریمر کے حساب سے اس طرح سے ہے, تو انہوں نے اس کے اوپر اتنا یہ زور نہیں دیا ہے کہ یہ غلط لکھا ہے. ایسا نہیں شاید انہوں نے ایسا نہیں لکھا ہے. انہوں نے کچھ اپنی طرف سے رائے ظاہر کی, وہ بھی صحیح نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. کہ بھائی قرآن میں شک پیدا کرنا یہ تو سراسر کفر ہے. جی حضرت. شک پیدا کرنا قرآن میں جب اللہ نے فرمایا الف لام میم, اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب
किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो अहमद यार खान ने जो शक जाहिर किया वो भी गलत, उन्होंने जो लिख के दिया है वो भी गलत, बिल्कुल गलत है। ग्रामर का मामला जो बताया है जी, अहमद यार खान ने क्या लिखा जी? अहमद यार खान नईमी ने लिखी है कुछ इस तरह की बातें कि ग्रामर के हिसाब से ये ऐसे है और पढ़ा इस तरह से जाता है कुरान के बारे में। जी जी, तो वो भी बिल्कुल खतरनाक बात है भाई। जब 1400 साल में बड़े बड़े मुजद्दिद आ गए, इमाम आ चुके, औलिया किराम आ गए, किसी ने इस तरह की बातें नहीं की जैसे ये आज 14वीं सदी के मौलवी कर रहे हैं। जी अहमद यार खान ने भी गलत लिखा है। अहमद यार खान साहब, अहमद रजा खान साहब ने नहीं, अहमद यार खान नईमी, अहमद यार खान नईमी, ये थे गुजरात के रहने वाले, पाकिस्तान का जो गुजरात है ना वहाँ के रहने वाले थे। जी हजरत। तो ये इन्होंने भी बकवासी करी है, तरह की बहुत जबरदस्त बकवास करी है। तो वो दलील ये बना रहा है तारिक मसूद के जो फेवर वाले है ना, जी जी, और मौलाना मुफ्ती अहमद रजा खान साहब ने भी कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं, जैसे कुरान करीम की आयत है युहर्रिफूनल कलिमा मवादिही, इस आयत के लिखने के बाद ये लिखा है कि क्या इसके सर पर सींग होते हैं। और फिर उनके मानने वाले उसकी वो वकालत कर रहे हैं उस बात की कि अरे वो बलागत के हिसाब से कहा है और तकनीक के हिसाब से, और एक ये वो जाने क्या क्या मिसालें दे रहे हैं कि वो होता है बलागत में तलमी होती है, तलमी का मतलब, अरे ये क्या क्या फालतू बातें कर रहा हूँ। सीधी सीधी बात है कि जो गलती अगर किसी ने की है उसको गलती मान लो। ये गलती को अगर तुम हर गलती को तुम सही करके बताओगे तो फिर हम ये कहते हैं गुलाम अहमद कादियानी को भी मुसलमान मान लो, झगड़ा खत्म हो जाए। क्या ख्याल है? अच्छा हजरत, नहीं, जब गुलाम अहमद कादियानी के तुम हाथ धो के पीछे पड़ गए, उसके कोई वकील नहीं है, मर मुरा गया वो, तो उसके वकील अगर इतने होते आलिम जितने आज दूसरे फिरकों के हैं तो उसके वकील भी उसको बचा लेते गुलाम अहमद कादियानी को। अरे नहीं, ये मतलब नहीं, मसीह मऊद का ये मतलब है, जिल्ली नबी का ये मतलब है, मसीह मऊद का ये मतलब है, ये मतलब से नहीं, ये मतलब से कहा था गुलाम कादियानी ने, ऐसा नहीं यूं कहा था, वैसा नहीं यूं कहा था, फिर तो उसको भी बचा लेते गुलाम कादियानी को लोग। अच्छा हजरत, ये जो अहमद रजा खान साहब है बरेली के, एक बात याद आ गई फिर बताना। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इकफारुल मुल्लिदीन आपकी किताब है, बड़े मुहद्दिस थे, सबसे बड़े दारुल देवबंद के, आपने लिखा है कि अगर इस तरह की तावीलें की जाएंगी, ये पहले तो लिखा कि आखिरी नबी का जो मायना है उर्फ़ आम में जो मशहूर है वही मायना मुराद लिया जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कहा कि अब मायने दूसरे बताए जाएंगे, ये है वो है। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि फिर तो अगर तावीलें की जाएंगी तो कादियानी को भी मुसलमान मानना पड़ेगा। आग बात कही उन्होंने, मतलब ये है कि अगर तुम ऐसे बचाओगे अपने अपने मौलवियों को, फिर तो भाई ऐसा है कि दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तो फिर मैं किसी फिरके का आदमी नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ने मोमिन मुस्लिम बनाया है, और मुझे कोई आकर सनद न दे तो डंडा उठाना पड़ेगा मुझे। मेरे पास घर में डंडे भी रखे, डंडा एक इधर है बाथरूम में रखा हुआ है, शायद एक आध उधर कहीं होगा, एक आध इधर था, शायद बाथरूम में देखना पड़ेगा है कि नहीं अभी, नहीं तो मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। कोई भी फिरके वाला आए तो मेरे पास ये ना कहे क्या है कि हम तुम्हें मुसलमान बनाने आए, नहीं तो फिर मैं उसे मुसलमान न बना दूं अच्छी तरह से। मुझे अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, मुझे अब किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं है, देवबंद जाके, बरेली जाके, लहदी जाके, मौदूदी जाके। क्या ख्याल है? जी जी। मैं सनद लेने क्यों जाऊं कि मुझे आप सनद दे दो मुसलमान होने की? कलमा पढ़ना ये सनद बहुत है, कलमा पढ़ना सनद है। अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, और जो मुझे मुश्रिक समझ रहा मुश्रिक समझे, काफिर समझता काफिर समझे, जो गुमराह समझ रहा गुमराह समझे। मैं उसके पास यूं भी नहीं जाऊंगा कहने के यार मुश्रिक मत समझ, मुझे काफिर मत समझ, मुझे गुमराह मत समझ, जो समझना समझ तू। अच्छा यार एक बात बताए, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और अहमद रजा खान, इनमें बड़ा आलिम कौन था जी आपकी नजरों में? क्या मतलब? अहमद रजा खान, हाँ, और उधर हजरत थानवी, हाँ हाँ, इनमें बड़े अकाबिर कौन थे दोनों में? ये फिक़ा में तो ये बड़े थे हजरत फाजिल बरेलवी, मसले मसाइल के मामले में ये मसले मसाइल के इमाम थे। हजरत थानवी? हजरत थानवी इल्म हदीस और इल्म तफसीर के अंदर इमाम थे अपने वक्त के। इल्म हदीस बहुत ज्यादा था और इल्म तफसीर बहुत ज्यादा था। और हजरत फाजिल बरेलवी को जो है फिक़ा मसले मसाइल के अंदर महारत हासिल थी। और इसके अलावा और भी उलूम थे उनके पास में, और ये नाज शरीफ लिखने में भी माहिर थे, इसमें कोई शक नहीं। नाज शरीफ बहुत अच्छी है उनकी।
अच्छा अच्छा हजरत अहमद रजा खान को खुद बरेलियों की किताब में लिखा हुआ है, हजरत मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने चैलेंज कर दिया था। क्या कर रहे चैलेंज? जी, मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब वो तो लोग कहते हैं कि आए थे बरेली मुनाजरा करने तो उन्होंने अपना पेट उठा दिया था कि मेरे पेट का मामला। देखो साहब, बातें बनाई जाती हैं तरह तरह से, कोई किस तरह से बात बनाता है, कोई किस तरह से बनाता है। अपन को तो अब कौन तहकीक करने जाएगा 100 साल पहले क्या ऐसा हुआ था, है? आदमी तरह तरह से बातें बनाता है, कोई थानवी साहब के बारे में बनाएगा, कोई फाजिल बरेलवी के बारे में बताता है, अजीब अजीब तरह की बातें। अच्छा हजरत, हमें तो सबसे पहले ये देखो 150 साल पहले के उलमा ने औलिया ने जो किताबें लिखी हैं बस वो पढ़ो बस। मगर अहमद रजा खान का तो हजरत ये बताया गुमराही पे खात्मा हुआ ना। अब देखो साहब, वो तो 100 साल पहले की बात है, कौन तहकीक करने जा रहा है कि आपका गुमराही पर खात्मा हुआ है या नहीं हुआ है। देखो उनके वालिद ने बात लिखी है, हजरत अल्लामा नकीली खान रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अलमनशा जिल्दोम सफा नंबर 170 पे है या 71 पे है, इसी के करीब में, दोनों में से कहीं मिलेगी, सफा 70 या 171 पे, कि जिस काफिर का, बहुत गहराई से बात लिखी है अल्लामा नकली खान रहमतुल्लाह अलैह ने, समझना बात को, कह रहे हैं जिस काफिर का कुफ्र पर मरना यकीनी न हो उस पर भी नाम लेकर लानत न करे। जी जी, मतलब क्या हुआ, जो मादरजात काफिर हो, शुरू से ही काफिर हो, उसका भी अगर कुफ्र पर आपको मरना यकीन नहीं तो उस पर भी नाम लेकर लानत न करे। और जो कलमा पढ़ने वाला है शुरू से ही, तो हम उस पर कैसे उसके बारे में कहते हैं कि साहब वो ऐसी हालत में मरे हैं, हमने देखा भी नहीं है। क्या ख्याल है साहब? असल में बात ये ख्याल है हजरत, जैसो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे चारा काबिर है, इनके खिलाफ मक्का मदीना से फतवा लेकर आए। फतवा तो आ गया था, जैसा सवाल आप लिख के दे दोगे उससे मुफ्ती जवाब दे देगा। सवाल के दिया कि ये आदमी नमाज पढ़ने का इनकार करता है तो लिख के जवाब आ जाएगा काफिर है। अब वो तो जो बालिग मुफ्ती होगा पहले तहकीक करेगा कौन सी नमाज का इनकार किया है, नफिल नमाज का इनकार किया है, फर्ज का किया है, वाजिब का किया है, किस टाइम पर नमाज पढ़ने को मना किया है। एक बड़ा मुफ्ती है, वो पूरी बात पूछता है, उसकी तहकीक करता है। नहीं अच्छा तो ये फतवा झूठा लाया ना अहमद रजा खान। फतवा तो था, वो हिज़्बुल ईमान की इबादत पर था। उन्होंने अगर मगर के फतवा तो दिया है कि अगर उनका इरादा तौहीन की नियत का है तब कुफ्र लागू होगा। और हजरत थानवी साहब ने खुद ये इकरार किया है कि हमने ऐसा इरादे से लिखा ही नहीं है, ऐसा तौहीन का हमारा कोई ख्याल भी नहीं है। और ये भी कहा है कि जिस ख्याल से हजरत फाजिल बरेलवी मुझे काफिर करार दे रहे हैं, ऐसे शख्स को तो मैं भी काफिर ही मानता हूँ। तो अपना दिफा किया ना उन्होंने? नहीं, थानवी साहब ने ये कहा कि अगर इस ख्याल से जो लिख रहे हैं फाजिल बरेलवी मुझे मान रहे हैं कि तौहीन की नियत से काफिर, कहा कि ऐसे को तो मैं भी काफिर मानता हूँ। ऐसा हुआ जरा, हमारे यहाँ से भी उमरा करने के लिए कुछ बरेली गए थे, 2-3 बरेली उमरा करने के लिए। तो अपना इमाम यानी कि जो इमाम काबा है उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ती उन्होंने। बिल्कुल, क्या जवाब देंगे क़यामत में अल्लाह की बारगाह में? जी ये तो बात करता हूँ। एक बात बताओ, मुजफ्फरनगर में अगर कोई किसी मस्जिद में काफिर इमामत करेगा तो क्या वो पकड़ा नहीं जाएगा काफिर? बिल्कुल पकड़ा जाएगा। कभी कभी तो पकड़ा ही जाएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने चल जाएगा, चलो छुप छुपा के। कब तक वो इमामत करेगा ये बताइए आप मुजफ्फरनगर में? तो हजरत जब मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में काफिर इमामत नहीं कर सकता, लोग उसके पीछे समझ जाएंगे कि यार ये मुसलमान नजर नहीं आ रहा हमें। अभी तो समझेंगे, कितनी जाहिल लठ हो वो भी समझ जाएंगे कि यार ये आदमी कुछ ऐसी लग रहा है कि नहीं। अब बताओ, खाने काबा में जो इमामत कर रहा हो कोई मामूली आदमी है जिसके पीछे पूरी दुनिया के 50,000 आलिम नमाज पढ़ते हैं, मुफ्ती नमाज पढ़ते हैं, बुजुर्ग नमाज पढ़ते हैं, मुहद्दिस नमाज पढ़ते हैं, क्या उन सब की आंखें फूट जाएंगी? हजरत लोग कहते हैं ये जो मौलाना अब्दुल रहमान सुदैस है, ये देवबंदी है ना, वो नक्शबंदी है ना, वो बरेलवी है ना, वो अहले हदीस है। वो तो सिर्फ मुसलमान मोमिन है, वो अपने आप को कुछ जाहिर ही नहीं करते कि हम देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कुछ कहते नहीं अरब वाले। नहीं कहते हैं कि दारुल आते हैं, दारुल के अंदर आते हैं। वो तो एक बार रामलीला मैदान में भी आए थे, नमाज पढ़ाई थी शायद। देवबंद में तो यूं आते हैं कि देवबंद वाले उनको मुसलमान मानते हैं तो इसलिए वो आ जाते हैं देवबंद में नदवा में। अब ये बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते तो वहाँ यहाँ क्यों आ जाएंगे बताइए आप? जी जी।
आज शेख सुदेश है या शेख सुरेम है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर में जाए मिसाल के तौर पे, जमदा शाही में जाए, फैजुर रसूल बराऊ में जाए, या मंजर इस्लाम बरेली में जाए, या मजर इस्लाम में जाए, या साजी देड़ा में कोटा में मौलवी इदरीस के मदरसे में जाए, तो ये मौलवी इदरीस साजी देड़ा वाला, ये अगर वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे 1 लाख नमाज पढ़ने के लिए साजी देड़ा में या मंजर इस्लाम में, तो मौलवी इदरीस मना कर देगा, इसके पीछे नमाज नहीं होगी, बिल्कुल नमाज नहीं होगी। तो फिर बताइए, जब ऐसी बात करेगा तो हंगामा होगा कि नहीं होगा? जी जी। मौलवी इदरीस रामपुरी ने, साजी देड़ा वाले ने कहा, कोटा में जो मौजूद है रामपुर का रहने वाला, कि मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी हज को गया था तो, यानी जमात से एक भी नहीं पढ़ी, जुमा भी नहीं पढ़ा। तो उसका हज कैसे हुआ जी सर? हज वो तो हो गया उसका हज, वो तो मान रहा है अपने आप को मेरा हज हो गया। बताइए अब बताओ, 7 जुमे जो छोड़े, हुजूर ने फरमाया जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पूछ डाल दिया। तो कहता है मैंने होटल में जुमा कायम कर लिए था, होटल में कैसे जुमा हो जाएगा साहब? अच्छा जरा एक बात तो बताओ, आप तो पूछिए आप कहाँ हो? मैं घर पे हूँ, आज जुमे की नमाज होगी, तो तुम घर पे कहाँ पढ़ लोगे नमाज जुमे की? अरे वो तो कहीं भी पढ़ ले, वो तो हवाई जहाज में भी नहीं पढ़ ले, कहीं हवाई जहाज में जुमा ना कायम कर ले मौलवी इदरीस रामपुर का कोटा वाला। वो तो ये भी कह रहा है कि जिसने नमाजें पढ़ी है 40 दिन की इमाम के पीछे, वो पूरी 200 नमाजें दोहराए। 200 नमाजें जो हाजी पढ़ के आया है ना इमाम के पीछे, हरम शरीफ मदीना शरीफ मक्का शरीफ के इमाम के पीछे 40 दिन में, तो वो पूरी 200 नमाजें दोहराए गिन के। जो मक्की अल हिजाजी है ये कौन है? मक्की अल हिजाजी? हजरत मक्की हिजाजी तो देवबंद वालों के उलमा से ताल्लुक भी रखते हैं और बयान भी करते हैं कभी कभी, लेकिन वो अच्छे आलिम है, काबिल आलिम है। उन्होंने तफसीर लिखी है सूरह फातिहा की तफसीर, आप पढ़ोगे तो हैरत में पड़ जाओगे, इतनी मोटी किताब है, लगभग 800 पेज की है, मैंने देखी थी, पढ़ी भी है, बहुत शानदार सूरह फातिहा की तफसीर इतनी बड़ी लिखी है उन्होंने, अंदाजा लगाओ। अच्छा जरा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ज्यादा किताब लिखी है, अहमद रजा खान ने ज्यादा किताब लिखी? हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब ने भी किताबें बहुत लिखी हैं, लेकिन थानवी साहब की किताबें ज्यादा है उनके मुकाबले में। इनकी इतनी छपी भी नहीं है, इनकी छपी है 50-60, सब मिला के 50-60 छपी है। थानवी साहब की छप कहीं बहुत ज्यादा, उनकी भी 1100 के लगभग है, और इनकी बताते तो 1000-1100 है, लेकिन वो मंजर आम पे तो आई नहीं है हजरत फाजिल बरेलवी की। चंद किताबें हैं जिनके मैं नाम बता देता हूँ, जैसे फतावा रज़िया मशहूर है, वही आम है, और बाकी इरशादात वो और कुछ किताबें गिनती की हैं बस। मैंने हजरत थानवी कब्र देखी हजरत। अब अंदाजा लगाओ, हजरत थानवी साहब के खलीफा को हमने देखा है, लास्ट उनके खलीफा थे मुहीद सुन्ना हजरत शेख अबराउल हक साहब हरदोई वाले रहमतुल्लाह अलैह, मैं मालूका भी हूँ रात। तो हजरत की यहाँ मस्जिद जो है वहाँ पर मदरसे में, उसमें साफ लिखा है, तख्ती लगी है, हर तालिब इल्म असर के बाद वहीं बैठे बैठे 80 बार दुरूद शरीफ पढ़े। जी जी। तो जो एक वक्त में, इतने कम वक्त में 80 बार दुरूद शरीफ पढ़वाते हो, तो वो कितना दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे वो लोग रात दिन में? जी जी। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा कि तुम फजर के बाद 5 मिनट दरूद सलाम पढ़ लो और जाओ घर। अल्लाह ने तो फरमाया कि ईमान वालों खूब खूब दरूद और सलाम भेजो, खूब खूब। अब ये तो 5 मिनट खड़े होकर सलाम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं पढ़ लिया सलाम हमने, जो नहीं पढ़े उसे काफिर मानते हैं। अरे ये अल्लाह ने कब फरमाया कि फजर के बाद 5 मिनट पढ़ो या जुम्मे के बाद 5 मिनट पढ़ो? अल्लाह ने तो फरमाया कि ईमान वालों खूब खूब दरूद सलाम भेजो जितना हो सके। अब आप अकेले में हो तो खड़े होकर भी आप दरूद शरीफ पढ़े, घर में है, आप कमरे में हैं, आप खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा लेके। अब नमाज के अंदर आदमी है, मस्जिद में किसी की नमाज जमात छूट गई है, बेचारा कोई बाद में आके पढ़ रहा, अब आप आवाज में दरूद शरीफ पढ़ोगे तो उसकी नमाज में डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? कुरान पढ़ने को भी फुकाहा ने मना किया है कि अगर कोई बुलंद आवाज में कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाजी नमाज पढ़ने आया, तो उस वक्त फिर बुलंद आवाज में कुरान न पढ़े, यानी आहिस्ता आवाज में पढ़े। बिल्कुल है क्या नहीं था? अब ये माइक से सलाम पढ़ रहे हैं, अरे भाई बिना माइक के पढ़ लो ना यार। गवर्नमेंट तो जो है कि आज कितनी पाबंदियां क्यों लगा रही है? ये सब इन लोगों की वजह से। तुम माइक से ही सलाम पढ़ लो, माइक से ही अजान, माइक से ही सलात। अरे भाई सलात पढ़ना है तो भाई बिना माइक के पढ़ लो यार, सलाम पढ़ना है बिना माइक के पढ़ लो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? अच्छा ये माइक से ही सलात, माइक से ही सलाम। अब बताओ, ये लोग गवर्नमेंट ने जब हमें इजाजत दे रखी है माइक लगाने की, तो उसका तुम नाजायज फायदा क्यों उठा रहे हो? बिल्कुल। अच्छा जरा एक बात तो बताओ जी सर, देवबंदी बड़ा तबका है या बरेली बड़ा तबका है? इन तबकात का मामला तो ऐसा अजीब व गरीब है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे बीजेपी कांग्रेस है ना, इंडिया पाकिस्तान है। अब आदमी कंफर्म नहीं कह सकता कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा या आज इंडिया जीत जाएगा। दोनों टक्कर की टीम है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की।
इसी तरह बीजेपी कांग्रेस टक्कर की ये पार्टियां हैं सियासत के अंदर। अब आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस खड़ी हो, बीजेपी कोई कंफर्म नहीं कर सकता आमतौर से कि बीजेपी निकल जाएगी, कांग्रेस कभी भी कोई भी किसी को टक्कर दे सकता है। इसी तरह देवबंद बरेली का मामला है कि किसी को भी कोई भी आदमी टक्कर दे सकता है। दोनों के इतने ज्यादा वकील हैं कि कहीं भी दाव देवबंदी भी लगा सकता है, बरेली भी लगा सकता है। अब मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ में टोटल देवबंदी थे आज से 30 साल पहले कम बेश टोटल। मैं जब पहली बार अलीगढ़ गया हूँ तो मेरी सबसे पहली तकरीर अलीगढ़ के इलाके में अतरौली में हुई थी, भैंसीपाड़ा में, अतरौली में। वो मस्जिद बरेलियों के कब्जे में थी जब मैं गया था। मैंने जुमा भी पढ़ा वहाँ, जैसे ही मैं तकरीर करके आया बाद में मालूम हुआ कि देवबंद वालों ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। अलीगढ़ के अंदर अतरौली एक गाँव है करीब में, तो कस्बा है, वहीं पर मौलवी सरवर था, वो आजकल मास्टरी में लग गए मौलवी सरवर। फिर मैं वहीं से अतरौली से अलीगढ़ आया जीवनगढ़ महल्ले में, तो मैं इतना डर रहा था बात करने में, क्या कहीं देवबंद वाले सुन न ले, कोई ऐसी बात गलत में न कर दूं। डर डर के कुछ ऐसे में बात कर रहा था। लोग जमा हुए थे मेरे पास जब पहली बार मैं अलीगढ़ गया वहां पर, यानी उस महल्ले में। तो बाद में ये आलम हो गया अलीगढ़ में कि बरेलियों की लाइन लग गई, यानी मस्जिदों की मस्जिदें हो गई। जीवनगढ़ में 5-6 मस्जिदें, रजानगर में 3-4 मस्जिदें, करीब करीब अतराफ में अलीगढ़ में मिला के लगभग 70-80 की करीब मस्जिदें हो गई कम बेश। जहाँ एक दो मस्जिदें मिलना मुश्किल थी, एक ही मस्जिद थी नूर मस्जिद, आज 70 मस्जिदें बरेलियों की हो गई। आप सुनो, इसी तरह आप जब बम्बई जाओगे पूछोगे बम्बई में 50 साल पहले कितनी मस्जिदें थी देवबंद की, तो वो कहेंगे पुराने लोग के साथ 50 साल पहले तो गिनती की मस्जिदें थी देवबंद वालों की, 8, 10 या 20 बताएंगे मुश्किल से। आप कहेंगे बम्बई में अब तो लगभग 200-300 के बीच में मस्जिदें हो गई देवबंद वालों की। कितनी तेजी से बढ़ गई वहाँ देवबंद। जहाँ देवबंदी था वो बरेलवी बढ़ रहा है, जहाँ बरेलवी था देवबंदी बढ़ रहा है। दिल्ली में आप चले जाओ तो बरेलवियत बढ़ रही है वहाँ पर, और जहाँ पर देवबंद बरेलवियत थी वहाँ देवबंदियत बढ़ रही है। अच्छा हजरत, विदेश के अंदर देवबंदी बहुत है? विदेश में तो अक्सर देवबंदी है 95%। जैसे अमेरिका में देवबंदियों का होल्ड है, अफ्रीका में भी देवबंद वालों का होल्ड है, इंग्लैंड में दोनों टक्कर के देवबंद बरेली, गुजरात के लोग पहुंच गए ना जी जी, तो इनमें वहाँ भी इंग्लैंड में भी देवबंद वाले ज्यादा है। खुद एक आलिम मौलाना यूनुस हैंगे प्रिस्टन में, वो खुद तकरीर करने में कह रहे थे, मैंने उनकी तकरीर सुनी है। एक साहब गुजरात में ले आए थे तो वो वाली तकरीर थी कैसेट वाली जमाने में, तो कह रहे थे पहले हम यहाँ इतने थे, हमारी 4 मस्जिदें थी, अब 2 मस्जिदें रह गई, यानी सब देवबंद वाले हो रहे हैं वहाँ पर भी प्रिस्टन में। जी ऐसी अफ्रीका में भी हो रहा है। इसी तरह न्यूजीलैंड में बरेलियों का मामला नहीं है, ज्यादा थोड़ा बहुत है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, चीन में नहीं है इनका, और कनाडा में नहीं है, और जापान में भी ये बहुत थोड़े बहुत है, हल्के फुल्के। कभी जापान का कोई आलिम उर्स आला हज़रत में नहीं आया, कभी जापान कोई वो क्या कहते हैं कनाडा का कोई आलिम उर्स आला हज़रत में नहीं आया, कभी चीन का कोई आलिम उर्स आला हज़रत में नहीं आया। और कभी आप इज्तिमा देख लो, तबलीग जमात का जब इज्तिमा होता है तो चीन की भी जमात है, ऑस्ट्रेलिया की जमात है, न्यूजीलैंड की भी जमात आती है, कनाडा जाने कहाँ की पूरी दुनिया के मुल्कों की जमात आ जाती है, काफी मुल्कों की। अच्छा हजरत, बरेलवी अरब के अंदर भी है? अरब में नहीं है इनका कोई हिसाब किताब। अरब में तो इनके ऊपर मामला इतना सख्त है कि इनकी कोई किताब भी हो ना तो उस पर भी पाबंदी हो जाती है अरब में। जी। पूरे अरब में देवबंद वालों का होल्ड समझो, जिनको ये लोग देवबंदी कहते हैं, मुसलमान नहीं मानते, वही लोग हैं अरब में, बहरीन में, कतर में, दुबई में और मिस्र में। सारे मिस्र में टोटल वही लोग हैं जिनको ये लोग देवबंदी मानते हैं। मिस्र के जो जामे अजहर में पढ़ने जाते हैं ना, वो सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा भी नहीं चूमते, न याकूब अल-मदद कहते, न वो फतवा शामुल हरमैन को मानते, न इमाम काबा को काफिर मानते हैं। मुसलमान मानते हैं इमाम काबा को वो लोग, जामे अजहर मिस्र के लोग। जी जी। अच्छा हजरत, ये जो है सलमान अजहरी, हाँ, ये कहाँ पढ़ा हुआ है? वो जामे अजहर मिस्र में पढ़ के आया, देवबंद वालों के साथ, नजवे वालों के साथ, सुला कुल्लियों के साथ में। तो ऐसी मुफ्ती शाहिद मियां का लड़का जो रामपुर में, ये भी जामे अजहर पढ़ के आया। ये लोग बताते नहीं है, ये छुपाते हैं, कहते नहीं वो सुन्नी है। सुन्नी तो है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो वो वहाबी है। क्यों सुन्नी बना रहा हो फिर वहाबी को तुम लोग? सुन्नी तो हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से वहाबी हो जाते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा हजरत, आपने कौन सा मदरसे में तालीम की? मैं भोपाल ताजुल मसाद में पढ़ा हूँ 4 साल। हमारे उस्ताद थे हजरत मौलाना नौमान साहब, बहुत काबिल आलिम थे। हजरत इमामुन नहव हजरत मौलाना अहसन साहब नदवी, अभी अहसन साहब जो लीबिया में पढ़ाते थे, वो नहवी है, बहुत बड़े नहव के वो हैं, अभी मौजूद है शायद वो। अच्छा सर, मैंने सुना तुम आपने बरेलियों में परवरिश की अपनी? मैं बरेलियों में रहा हूँ करीब 25 साल 30 साल, और आज भी जाता हूँ, मगर मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता, काफिर माफिर नहीं बनाता। मैं तो सबको मुसलमान मानता हूँ, देवबंद बरेली वालों को, कि भाई आपसी झगड़े हैं या किताबों में जो गलतियां हम मानते गलतियां हुई हैं, तो उनको क्यों बयान कर रहे हो पब्लिक के सामने? पब्लिक के सामने आप इस्लाम बयान करो,
اللہ کے रسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو، آپ صحابہ کرام کی زندگی بیان کرو، آپ امام حسین کی فضیلت بیان کرو۔ امام حسن عسکری جی کبھی فضیلت بیان نہیں کرتے، کبھی بھی دونوں فرقے لوگ دونوں ہی بیان نہیں کرتے، نہ اہل حدیث بیان کرتے نہ مودودی، خالی شیعہ جو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ شیعوں کے امام تھوڑی ہیں، وہ تو ہمارے بھی امام ہے، امام حسن عسکری، ہمارے بھی امام نقی، امام تقی، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، ان کے نام پہ تو ہمارا چینل چل رہا ہے، امام علی رضا کے نام پر۔ جی جی امام علی رضا کے نام کی برکت ہے ہمارے چینل میں، نہیں ہے؟ بالکل ہاں جی۔ دنیا میں آج کتنے ملکوں سے، کئی ملکوں سے ہمارے پاس فون بھی آ گیا الحمدللہ، یعنی عرب ملک سے، دمام سے آیا، اور قطر سے، یعنی کتنی جگہ سے فون آ چکے الحمدللہ، عمان سے۔ تو یہ حضرت امام علی رضا کے نام پر ہے چینل ہمارا۔ جی جی اچھا حضرت، یہ جو ہے مولا سید طاہر حسین غیابی جن کا انتقال ہو گیا، یہ تو بڑے مناظر تھے، اور ان کے بعد مناظرے والے ایسے نہیں رہے، دیوبند والوں میں کوئی مناظر نہیں ہے اتنے درجے کا۔ حضرت مولانا نظر صاحب ہیں، نظر محمد بہرائچ جی، جی جی تو وہ ان کے درجے کے نہیں ہیں۔ اسی طرح بریلیوں میں تھے علامہ ارشد القاضی، ان کے بعد اب کوئی اس درجے کا مناظر نہیں رہا۔ وہ مفتی رحمان صاحب مناظرہ تو کرتے ہیں، لیکن انہیں کرنا نہیں آتا، بول نہیں پاتے زیادہ وہ صحیح سے۔ اچھا حضرت، یہ جو ہے صغیر احمد جوگن پوری، ارے یہ تو ان کے سامنے بچے ہیں، یہ کس کے سامنے کیا کہو، یہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کے سامنے بچے سمجھ لو صغیر جوگن پوری۔ مطلب ہے علامہ ارشد القاضی صاحب کے سامنے ویسے بھی کچھ نہیں، مولانا طاہر حسین غیابی کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور ان کے سامنے کیا مناظرہ کریں گے، جب وہ مفتی مطیع الرحمان صاحب جیسے نہیں، علامہ ارشد القاضی سے مناظرہ کیا طاہر حسین غیابی نے، سمجھ گئے۔ اچھا حضرت، وہ جو مناظرہ ہوا تھا، نہیں ارشاد صاحب کرتے تھے، سب سے پہلے دیوبند والوں کے مناظر حضرت مولانا ارشاد صاحب تھے۔ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، یہ مطیع الرحمان کا مناظرہ ہوا ہے مولانا طاہر حسین غیابی سے، اس میں کس کی فتح ہے حضرت؟ ارے یہ اٹارسی میں جو مناظرہ ہوا ہے، اس میں تو خود مطیع الرحمان نے لکھ کے دے دیا ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب نے، جو لسٹ پہ انہوں نے غلطی نکالی تھی نا کنز الایمان کے بارے میں، کنز الایمان کے اندر جو لسٹ تھی کا، یہ دیکھو اس میں لکھا ہے انبیاء اولیاء دوسرے دیکھتے سنتے مدد کرتے، اور آیت شیطان سے متعلق ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ تو مطیع الرحمان صاحب کہہ رہا کہ نہیں اعلیٰ کی لسٹ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کس کی لسٹ ہے، آپ بتاؤ کس کی ہے پھر؟ تو وہ لسٹ تو اعلیٰ حضرت کی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے علاوہ ایسی کوئی لسٹ بن ہی نہیں سکتا اتنی باریکی سے، کتنی تو اس میں لسٹ میں آپ دیکھو کتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے، ان کے علاوہ کون بنائے گا؟ تو مفتی الرحمان صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ ہاں یہ توہین ہے، توہین ہے، لکھ کے دے رہے ہیں، وہ مناظرے میں لکھ رہے ہیں، اٹارسی کے مناظرے میں لکھ کے بھی دے رہے ہیں۔ جی جی اور سنو تھانوی صاحب کے خلیفہ کو ہم نے دیکھا ہے میاں، ایک ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ایک ایک سنت رسول نہیں چھوڑنے دیتے تھے وہ اپنے مریدوں کو۔ اچھا حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ان کے خلیفہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب ان کے خلیفہ، حضرت مفتی شفیع صاحب جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی۔ اچھا یہ مناظر بن سکتا ہے حافظ علی اصغر صاحب اگر میدان میں جائے؟ کون؟ حافظ علی اصغر۔ اگر یہ عالم بن جائیں تو پھر بڑے مناظر ہو جائیں گے، تھوڑا عالم اور ہونا ضروری ہے نا، علم کی ضرورت پڑتی ہے اس میں، جیسے فقہ کا علم ہو، نحو کا علم ہو، صرف کا علم ہو، حدیث شریف کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو۔ ویسے تو وہ مناظر تو سب طرح سے کر لیتے ہیں، حوالے دے دیتے ہیں ہر طرح کے، لیکن کتابی حوالے دینا الگ بات ہے، ایک علم کا بھی مناظرہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، جیسے حدیث شریف کے جو اقسام ہیں نا، بہت سارے اقسام ہیں، پھر ان کی تعریفات ہیں، پھر توضیحات ہیں، تشریحات ہیں، وہ سب سمجھنا پڑتا ہے۔ اچھا حوالے بہت زبردست دیتے ہیں، حوالے تو ان کے بعد کھٹکھٹ ایک دم دے دیتے ہیں فٹافٹ، لو ان کے بعد تو حوالہ تیار رکھا ہوا ہے، ایک دم مل جاتا ہے کھٹکھٹ، حوالے دینے میں ماہر ہیں۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی غلطی کرے تو آپ اس کو مطلب صحیح بتا کر اس کی تعویل کر کے اس کو الٹا سیدھا مت کرو، جی طارق مسعود کی زیادہ فیور مت کرو، اس لیے کہ جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے اچھی طرح سے، گالوں میں چاٹے دے کر توبہ کر کے ویڈیو نہ بنائے، اچھی طرح سے اٹھک بیٹھک لگائے، پھر گالوں میں چاٹے مارے اور اچھی طرح سے کلمہ پڑھے، کئی بار پڑھے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جیسے انہوں نے معافی مانگ لی، ہمیں کافر کہنا کوئی حق تو نہیں رہا نا ابھی تک۔ دیکھو حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث کو سمجھنا اچھی طرح سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ حدیث شریف میں گناہ کا ذکر ہے، گناہ جو کفر سے کم درجے کا ہو وہ گناہ میں داخل ہے، جیسے شراب پینا ہے اور بھی کچھ دوسرے جو بھی گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ حدیث اس طرح سے نہیں ہے التائب من الکفر کمن لا کفر لہ، توبہ کرنے والا کفر سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کفر ہی نہ کیا ہو، حدیث اس طرح سے نہیں ہے۔
हाजी इस तरह से तौबा करने वाला गुनाह से ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही न किया हो। अब जिसने कुफ्र किया है तो उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा, तजदीद ईमान सबके सामने करना पड़ेगा। जी जी। नहीं तो फिर कादियानी को भी तावील करके उसको भी मुसलमान साबित कर दो, खत्म बात, झगड़ा खत्म। क्या करें, शियाओं को फिर क्यों अलग करते हो, शियाओं को भी साबित कर दो कि नहीं नहीं उनका यकीदा इस तरह से जैसा है, ये फलाना ढमाका है। अच्छा ये बताओ, जैसे मिसाल के तौर पे जो भी तारिक मसूद का फेवर कर रहा है, अगर कोई उनकी बहन बेटी को खाली छेड़ दे, एक बार हाथ लगा दे, पकड़ ले, और बाद में लोग चले जाए साहब, मुफ्ती कामरान शहजाद, मुफ्ती बशीर साहब, मुफ्ती रशीद साहब आप माफ कर दो कि क्या आपकी बहन को छेड़ा ही तो, खाली हाथ तो पकड़ा ही था, तारिक मसूद ने जिना तो नहीं किया ना। अरे जाओ यार, मेरी बहन की इसने बेइज्जती करी, तुम लोग इस मेरे पास आए माफ कराने के लिए, बताओ कितना गुस्सा होगा कि नहीं आदमी कहे भी साहब जिना थोड़ी किया है, बहन का तुम्हारी हाथ पकड़ के दबाया ही तो है, लड़की का हाथ पकड़ के तो दबाया, और क्या किया है। अरे जा रहा हो कि नहीं जा रहे हो तुम, ऐसा डांट के भगाया गया नहीं। मुफ्ती कामरान शहजाद जो फेवर करने वाले हैं, रशीद डांट के भगाएंगे। अच्छा वो जी मौलाना गुमन साहब आज भी है। हाँ ये कैसे मुनाजिर थे? बड़े बड़े मुनाजिर थे, छोटे मुनाजिर थे मौलाना गुमन? ये तो बहुत काबिल आलिम है, वहाँ पर है, टर्की के अंदर है। इन्होंने हानिफ को चैलेंज कर दिया था। वो तो बहुत बड़े आलिम है हजरत मौलाना गुमन साहब, और ये क्या कहते हैं उनके शागिर्द हजरत मौलाना सफदर उकाड़वी साहब के। सफदर उकाड़वी साहब जो थे शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के शागिर्द थे, जिन्होंने 8 बार कुरान की तफसीर सुनाई, 8 बार। और हमारे उस्ताद भी हैं रईसुल उलमा मुफ्ती रईस अहमद खजा, मुफ्ती आलम मध्य प्रदेश, वो भी 2 बार मुकम्मल तफसीर सुना चुके भोपाल में। तीसरी बार मस्जिद साजिदा सुल्तान में सुना रहा है। सबसे बड़े मुफ्ती हैं, हाफिज मसाइल हैं, मसाइल शरीयत हैं, हाफिज मसाइल शरीयत मुफ्ती रईस अहमद खान साहब, वो भी तीसरी बार तफसीर सुना रहा है अभी। अच्छा मुझे तो बरेली से एक बार जगह, अच्छा बरेली वालों में कोई तफसीर सुनाने वाले मिलते ही नहीं आमतौर से। पूरे हिंदुस्तान में देखोगे 50 मिलना मुश्किल है। अकेले भोपाल में देवबंद नवासी मस्जिदों में तफसीर सुना रहा है, मेरे पास पूरी नंबर के साथ लिस्ट आई थी, मोबाइल नंबर के साथ। अच्छा ये बरेली के अंदर होता है, ये मुसलमानों को काफिर बनाते हैं, तो इसीलिए तो इनका इल्म खत्म हो जाता है। ये मसले मसाइल में माहिर होते हैं, बस फिक़ा में माहिर होते हैं। इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बांटा, वो बरेलवी वो क्यों नहीं देख रहा है? उसने लब्बे की अफ्तार के नारे लगवाया, उसने अपना मिलाद नामा पढ़वा लिया, उसने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, और लोग इसको इलियास काजी को प्यारे बप्पा जान कहते हैं। कभी इसको मीठा मीठा इलियास नहीं कहते, मीठा मीठा हबीब नहीं कहते, हबीब की बीवी को मीठा मीठा नहीं कहते, हबीब की बेटी को मीठा मीठा नहीं कहते, मुफ्ती समर को मीठा नहीं कहते, मुफ्ती समर की बेटी को मीठा नहीं कहते, उसकी बीवी को मीठा क्यों नहीं कहते दाऊद इस्लामी वाले। और जब कभी कोई पेशाब करने जाता तो मदीना मदीना कह के बुलाते थे लोग आपस में एक दूसरे को, मदीना मदीना। ये दाऊद इस्लामी वाले ये क्यों नहीं देखते बरेली वाले? जामिया नईमिया मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा इसके ऊपर लगा हुआ है, फैजान सुन्नत में जो इसने छापा था कि हम ईद क्यों ना मनाए रमजान के बाद, जब कोई आदमी लोग जालिम के चंगल से आजादी पाते हैं लोग तो खुशी मनाते हैं, तो हम ईद क्यों ना मनाए। इस पर जामिया नईमिया मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लगा हुआ है इलियास काजी में, लेकिन आज तक कलमा पड़ा इलियास काजी ने, न तौबा किया। बरेली उसे क्यों छुपाए हुए हैं? खाली तारिक मसूद की बात को क्यों उठाते हैं? या अशरफ अली खाली तारिक मसूद की बात क्यों उठाता है? और ये कौन है कारी हनीफ, ये उनकी अकेले की बात क्यों उठा रहा है? ये अजमल है वगैरह वगैरह, ये सब ये इलियास काजी के बारे में भी तो बताएं कि फैजान सुन्नत में लिखा है इलियास काजी ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और इलियास काजी खाने काबा के अंदर बैठा है, 31 में लिखा है। अब ये कहते हैं कटवा दिया, लेकिन उसने तौबा करी, कलमा पढ़ा उसने। तारिक मसूद ने तो तौबा भी कर ली, जाहिर में भी तौबा कर ली, अब उसके पीछे क्यों पड़े हुए? जब इलियास काजी की तुम्हें नजर नहीं आती गुस्ताखियां, क्या ख्याल है? इलियास काजी ने कैसी कैसी बातें लिखी हैं फैजान सुन्नत में, अब कटवा तो दी, लेकिन उसने कलमा थोड़ी पढ़ा है, ना तौबा किया है। ये लिखा है लाठी के कब्रिस्तान में जितने भी लोग इसके इज्तिमा में गए, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सबकी बख्शिश हो गई। और